अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन फैसलाबाद में थाना डजकोट की हदूद में एक प्राइवेट स्कूल के बाहर मौजूद है। अलमिया ये है कि एक रोज़ कबल इसी स्कूल का एक बच्चा स्कूल वैन के नीचे आकर रौंद दिया गया और उस पे बड़ा जो हादसे से बड़ा सान्या है वो ये था कि इंतज़ामिया ने यहाँ पे बेहिसी का मुजाहरा किया। क्या वाक़या हुआ, किस तरह से इस पे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, मुतासरा ख़ानदान क्या कहता है, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है आज फैसलाबाद में थाना डजकोट के इलाके में एक गांव में, जहां पे पूरा गांव इस वक्त सोग की कैफियत में है। 6-7 साला नन्ना इब्राहिम घर से स्कूल गया और फिर कभी वापस ना आया। नन्हे इब्राहिम की डेड बॉडी घर के सहन में पड़ी है और पूरा इलाका मातम कुना है। नाज़रीन इकराम, बात इस हादसे की है जो दरअसल एक कत्ल है। हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। नाज़रीन इकराम, इस बहस पे, इस बात पे बात करने से कबल मैं कोशिश करता हूँ इस हादसे के बाद दर्ज होने वाली FIR के मुद्दई और नन्हे इब्राहिम के दादा से बात करूं, क्योंकि उसके वालिद इस कैफियत में नहीं हैं कि टीम मुजरिम कौन उनसे हमदर्दी के 2 लफ्ज़ बोल सके। नन्हे इब्राहिम के दादा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले तो जी अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे। दसना होया की है, इब्राहिम घरों स्कूल गया, की वाक़या पेश आया साडे नाज़रीन नू दसना। डजकोट दे विच कैडेट स्कूल बनया होया प्राइवेट स्कूल आ। बदकिस्मती ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨ, ਹਾਕੀ, ਗੋਲਾ, ਥਾਲੀ, ਨੇਜ਼ਾ, ਹੈਮਰ ਥਰੋ ਟਾਪ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ। ਸੰਨ 76 ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਛੱਡ ਲੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਖਦਾਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਫੀ ਬੱਚਾ 7000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਮਾ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, 4-5 ਬੱਚੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ। 4-5 ਹੋਰ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ 60 ਫੁੱਟ ਉਹ ਰੋਡ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਦਾ
ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਸੀ? ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੋਈ? ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਪੈਨਸਲ ਗਿਰ ਗਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ, ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਬੈਗ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਭੇਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਟਿਲ ਨੀਚੇ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆ। ਅੱਛਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਟ ਆ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, 1.5 ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ 4-5 ਘਰ ਆਬਾਦ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅਦਨਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫਾਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 2 ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1:38 ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੋਨ ਆਇਆ। 12 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਔਰ 12:05 ਜਾਂ 12:07 ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। 1.5 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। 1.5 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, नहीं तो फिर ਅਸੀਂ भी ले ला। नाज़रीन इकराम, ये बात है, ये गुफ्तगू है एक उस बूढ़े बेबस लाचार दादा की, एक बाप की जिसने अपने एक नन्हे पोते को खोया है। और ये पूरा गांव जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं इस वक्त, वो तमाम यक ज़ुबान है, वो एक ही ज़ुबान में पूछ रहे हैं कि आखिर इंसानियत कहाँ गई, कहाँ है हमारे अंदर के वो इंसान, कहाँ है हमारा वो जज्बा जो शायद कभी ये हुआ करता था कि किसी एक गांव के फ़र्द को तकलीफ़ होती थी तो दूसरे गांव के लोग वहाँ पे भाग के आ जाते थे कि हमारे किसी भाई को तकलीफ़ है। और यहाँ पे एक नन्हा फूल, एक 6-7 साल बच्चा गाड़ी तले रौंदा गया। स्कूल इंतज़ामिया कहाँ गई थी? क्यों मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की गई? क्यों घर वालों को 1.5 घंटे के बाद जो है इत्तला दी गई? क्यों ऐसा हुआ कि एक थर्ड पर्सन, एक नौजवान जो वहाँ का शायद मुकामी है, वो देखकर बच्चे को उस पोजीशन से गाड़ी के नीचे से निकालता है, चारपाई का अरेंज करता है और पुलिस को भी वही इत्तला देता है? क्या ये मुजरिमाना गफलत किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है? क्या इसमें इंसाफ मिलेगा? और जैसे कि आपने सुना, अगर नहीं मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली इंसाफ और निज़ाम इंसाफ से लोगों का एतबार उठेगा और लोग कानून को हाथ में लेंगे। नाजरीन, नन्हे इब्राहिम की नागहानी और हादसाती मौत
जिसे अहले इलाका एक कत्ल का नाम दे रहे हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो मुजरिमाना गफलत है वो इस तरफ इशारा दे रही है, शायद घर वालों के रिश्ते हुए ज़ख्म पे मरहम रख दिया जाता अगर हर जो शख्स है वहाँ पे मौजूद वो अपना इंसानी और कौमी फरीज़ा अदा करता। लेकिन यहाँ पे गफलत बरती गई देखने वालों की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, और अहले इलाका यक ज़ुबान है हुसूल इंसाफ के लिए। और उनका ये कहना है कि अगर इंसाफ ना दिया गया तो फिर शायद इंसाफ और निज़ाम इंसाफ से बचा खुचा एतबार भी लोगों का उठ जाएगा। अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है, बात उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम दसियो जी। मेरा नाम लियाज जी। लियाज भाई, की वाकया की होया है और सारा पिंड जिहड़ा है वो तकरीबन रो रहा है इस टाइम? जनाब ये होया ना, इतों बच्चा सुबह जाता है, इन्हें वैन लाइया हुई अपन अदारे का जिम्मेदारी तो होंगी है कि घर तो लैके स्कूल तक, तो स्कूल तो लैके घर तक अदारे की जिम्मेदारी होंगी। बच्चे सुबह स्कूल गए ने, छुट्टी टाइम गेट तो बाहर आए ने, उस हादसा हो गया, उस वैगन आए ने जिसके पहलों भी 2 बच्चे ना इन्हें समुद्री रोड से बस थले दे के मारे सी। ऐसे ड्राइवर ने? ऐसे ड्राइवर ने। मतलब ये पहले इंसानी जान लै चुके हैं, तो फिर वो कौन है, वो किहड़ी इंतजामिया जिन्हें इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बंदा खास तौर पर बच्चों वास्ते लाता? उसी इन्हों का गराड़ा पिंड आ और ड्राइवर का तो नाल 85 गा मानपुर पिंड है जिसों के बच्चे मरे सी। वो फिर लोगों ने कट्ठियां कुट्ठियां होकर ना वो राणियां दे बाल सी तो इन्हों छड़ा दिता, माफ़ी तलाफी हो गई। अदारे की जिम्मेदारी तो यह है कि उस तो बच्चा एक्सीडेंट हो गया आ, बच्चा चौकीदार उन्ना चिर बाहर नहीं आने देता जिन्ना चिर उन्होंने वैन नहीं आउंदियां। उन्होंने वैन आए, वो बच्चे कट के उस वैन च पूरे किए, बाद दूसरे बच्चा हादसा हो गया। बच्चा 1.5 घंटा उस गेट के अगे स्कूल के अगे उसकी बाउंड्री च पिया रहा, कोई अमला नहीं आया, ना किसी प्रिंसीपल ने कहा, ना किसी टीचर ने आन के पूछया तक नहीं। वो कोई इलाके दे उस इलाके का कोई बच्चा सी यंग जा, उन्हें आन के 150 कॉल भी की, बच्चे ने चुक के मंजी से पाया। अमला जिम्मेदार को नहीं सी, अमला जिम्मेदार है और उन्होंने सारे अमले नूं उत्थे होना चाहिए। जिन्नी अवाम ये आखांगे कि अदारा जिहड़ा ना बंद होना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। इंशाअल्लाह असी DCO तक असी एजुकेशन च हर दफ्तर च भी एप्लीकेशन नहीं फसावांगे, ये अदारा जिहड़ा बंद होना चाहिए, क्योंकि उन्हें एडी नाल साडा बच्चा जिहड़ा रौंद के रख दिता। तो दूसरा वो क्रिमिनल, पहलों ही क्रिमिनल बंदा जिहड़ा ड्राइवर जिहड़ा फिर उस वैगन आए ने रखा है, उन्होंने पता भी है कि इन्हें 2 बच्चे उन्होंने पिंड दे मारे जिन्हों की वैगन है, तो उत्थों माफ़ी तलाफी करा के अज साडा मार दिता। इस तरह के बंदे नूं अगर तुसीं फिर छड्डोगे, फिर इंसाफ नहीं होएगा, तो फिर किसी दा इब्राहिम जिहड़ा वो गड्डी थल्ले आएगा। इंशाअल्लाह सानूं इंसाफ चाहिए, जे ना मिले तो इंसाफ अल्लाह की मेहरबानी इंसाफ भी लांगे। नाज़रीन इकराम, आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे नन्हे इब्राहिम का दुनिया से चले जाना शायद इलाका मकीनों की आंखें भी खोल रहा है। और यहाँ पे एहसास ज़िम्मेदारी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत सबसे बड़ा अलमिया है कि एक बच्चा जो गाड़ी तले आ गया, जो रौंद दिया गया, जो कुचल दिया गया, उसे उठाने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे वो लोग जिन्होंने उस बच्चे के वालिदैन का खून निचोड़ा, जिन्होंने फ़ीसिस ली, भारी भरकम फ़ीसिस ली, जिन पे ट्रस्ट करके वालिदैन ने अपना बच्चा वहाँ पे भेजा, और जब वो बच्चा गाड़ी तले रौंद दिया गया तो उसको उठाने वाला, घर इत्तला देने वाला, पुलिस को इत्तला देने वाला कोई नहीं था। और 1.5 घंटे तक वो बच्चा गाड़ी के नीचे पड़ा रहा। मज़ीद इलाका मकीनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, नाम दसियो जी। अस्सलाम अब्बास अली जी। वाह साहब, तुसीं इसे पिंड दे हो? नहीं जी, 268 पक्की पनोरी। और ये बच्चा जिहड़ा दुनिया तो चला गया, ये रिश्ते च तुहाडा की लगदा? ये साढ़े भाई भतीजा ही लगता जी, साढ़े भाई है जिन्हों का बेटा है मसना इस दुनिया तो रेलत फरमा गया। असी इस बच्चे की क्योंकि हले तदफीन नहीं हुई, असी इन्हूं देखिया है। बच्चा ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਚੂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਲਮਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ तो असी खुश हाँ, इंसाफ ना मिलया तो असी खुश कोई नहीं। उस तो हट के अगर इंसाफ ना हुकूमत सानू लै के दे सकी तो फिर जो अल्लाह पाक बेहतर करेगा
ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਫਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਇਦਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲਿਟਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਲਤਜਾ ਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਫਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਹਾਦਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 1-2 ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮਸਨ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਮਸਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਪਸ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਰ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਕਵਰ ਕਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਰਦਾਤੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਫਲਤ ਵਰਤੀ ਆ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਗਫਲਤ ਵਰਤੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਕਿਸੇ को ਸਾਡੇ को ये वेख्या नहीं जा रहा है। नाज़रीन किराम, ये हादसा बहुत से सवालात को जन्म दे गया है कि आखिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? क्या सिर्फ फ़ीस ले लेने तक इनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? और अगर स्कूल के गेट के ऊपर स्कूल ही की पिक एंड ड्रॉप का कोई ड्राइवर किसी बच्चे को रौंद देता है तो फिर किसकी क्या ज़िम्मेदारी है? और इस केस में किसने अपनी कितनी ज़िम्मेदारी पूरी की? आखिर अगर वो ड्राइवर जो मुबैना तौर पर 2 लोगों को पहले मार चुका है, अपनी गाड़ी तले रौंद चुका है और माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी, उसे इस नाजुक, सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे हुए काम पे दोबारा किसने अपॉइंट किया? किसने उसे लोगों के मासूम बच्चों की ज़िंदगियों से खेलने की इजाज़त दी? और अंजाम वही हुआ कि एक और बच्चा रौंद दिया गया। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है नन्हे इब्राहिम के घर के बाहर, और हमारे साथ एक वो बच्चा मौजूद है जो इब्राहिम के स्कूल का ही तालिब इल्म था, 5 क्लास का। उस्मान मौजूद है और उस्मान ने ऑफ कैमरा कुछ होश रुबा इंकशाफात किए हैं। उस्मान से सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बताओ कि आप इब्राहिम के स्कूल के तालिब इल्म हो? हाँ जी, मैं इब्राहिम के स्कूल के तालिब इल्म हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5 में। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था कि ना जुम्मे का दिन था, बच्चे लाइन वाइज जा रहे थे, जैसे नर्सरी प्रेप ऐसे ना वारी वारी जा रहे थे। आपके स्कूल में बच्चे जो हैं उनको जब गेट से बाहर निकाला जाता है तो क्लास वाइज निकाला जाता है? हाँ जी। और ये इब्राहिम की क्लास नर्सरी थी? हाँ जी, नर्सरी क्लास से जब मैं गया ना, अभी नीचे नहीं आया था, जब मैं गया ना, मैं अभी जा खड़ा ही हुआ हूँ, बच्चा था मेरा दोस्त दूसरे स्कूल का, मैंने उससे सलाम नहीं किया और मैंने हाथ में बैग पकड़ा था
अपने भाई का। मैंने अपने भाई को कहा इधर खड़े हो जाओ, सारे इधर खड़े हो जाओ। आपका भाई छोटा है आपसे? हाँ जी, मेरा छोटा है। मैंने कहा सारे इधर खड़े हो जाओ। पता नहीं वो पीछे पेंसिल उठाने गया, उसकी पेंसिल गिर गई मेरे आने से पहले। उठा रहा है, मैं उससे कह भी रहा हूँ रुक जाओ अंकल जी, रुक जाओ, पीछे बच्चा है अंकल जी, रुक जाओ। और मैं हाँ ये गाड़ी वाले को आप आवाज़ें दे रहे हो कि रुक जाओ? हाँ जी, मैंने कह वही रिवर्स आ रहा था? हाँ जी, इतनी तेज़ी से आना था ना रिवर्स। अब जी नीचे आया ना, दो ना पहले दिमाग फटा है, फिर पेट फटा है, तो ना ऐसे ही है ना। बच्चा ऊपर ही गाड़ी छोड़ के ना, उसने गाड़ी स्टार्ट ही थी अभी, उतरा, उसने कहा कि गाड़ी बंद कर दे। वो उधर से ना भाग गया, तो ड्राइवर? हाँ जी, उधर से भाग गया। फिर आया कोई रैंडम बंदा, उसने कॉल की है उसने पूछा कि ये 115 पे कॉल नहीं की? उन्होंने कहा नहीं की। फिर 115 पे कॉल की है, 112 पे की है, जैसे ये घर वालों को की है। तो ये सारा उस्मान बेटा मुझे ये बताओ कि ज़ाहिर है स्कूल है, स्कूल का गेट होता है, गेट के ऊपर एक गेट कीपर होता है, चौकीदार होता है जो बच्चों को 3 हैं आप कह रहे हो। और जब ये हो गया, एक बच्चा है वो गाड़ी के नीचे आ गया, चौकीदारों का क्या रिस्पांस था? वो क्यों भाग के नहीं आए? क्यों बच्चे को उस वक्त उन्होंने नहीं निकाला? क्यों ऐसी नौबत आई कि एक रैंडम बंदे को आके ये सारा कुछ करना पड़ा? चौकीदार कहाँ गए थे? चौकीदार उधर ही थे, उनको पता लग गया था बच्चा नीचे आ गया, फिर भी नहीं आए। 10-15 मिनट बाद मैम आई है, उनके साथ आए हैं 3 चौकीदार। मैम आई हैं? हाँ जी, मैम आई हैं, जो ना हेड है स्कूल की, वो आई हैं, और ऑफिस वाली जो ना फीस लेती हैं वो आई हैं मैम 2। ऐसे ना फिर तब तक इब्राहिम को गाड़ी के नीचे से निकाल लिया था या अभी नीचे ही था? अभी नीचे ही था, किसने नहीं निकाला, अभी मैं उधर ही खड़ा हुआ था। फिर वहाँ पे ऐसे मैम आई, उन्होंने कहा आपका यहाँ क्या काम है, आप स्कूल चलो। मैं अंदर आया हूँ। अच्छा, आप लोगों को उन्होंने वहाँ से हटा दिया, अंदर भेज दिया कि चले आप लोग चले अंदर? हाँ, आपका इधर क्या काम है? फिर मैं अंदर गया, मैंने मैम से कहा मैम जी मुझे फ़ोन दे, मेरा भाई को ऐसा मसला हो गया, मैं अपने घर के फ़ोन कॉल करनी है, मुझे आता है नंबर। मैं इतनी बार गया, एक बार भी नहीं, बंदा कहते चलो एक बार हुआ, 2 बार, इतनी बार गया ना मैं, फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप उनको कह रहे हो कि मैम मुझे ये मेरा भाई है, मुझे इसका पता है, घर का नंबर मुझे आता है, मेरे घर फ़ोन कर दें। मेरे चाचू का बेटा ये। और फिर मैम क्या कह रही हैं? मैम कह रही मैं कर रही है, फ़ोन कर दिया है। कर दिया है फ़ोन? आ रही है। मैंने कहा अभी तक क्यों नहीं आए? फिर है ना हमारे गांव की मैम है, उन्होंने ना हमें कहा कि रुक जाओ अभी कर दिया फ़ोन। उधर से मैम कह रही इधर बैठ जाओ, हमने घर फ़ोन कर दिया। ये सारा उधर वाक़या हुआ है। नाज़रीन किराम, मुजरिमाना गफलत जिसकी टीम मुजरिम कौन बात कर रही है, वो इस नन्हे उस्मान की बातों से भी बिल्कुल अयां है कि एक बच्चा हादसाती तौर पर अगर बस के नीचे आ गया है तो फिर स्कूल इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्यों 1.5 घंटे तक घर वालों को खबर नहीं दी गई? क्यों बजाय स्कूल इंतज़ामिया के किसी भी रैंडम आम शहरी ने, किसी नौजवान ने उस बच्चे को बस के नीचे से निकाला, चारपाई पे डाला और 115 पे कॉल भी एक आम शहरी की तरफ से गई? क्यों स्कूल इंतज़ामिया इस सारी गफलत की मुर्तकिब हुई और इस गफलत का ज़िम्मेदार कौन है और कल्प्रिट्स को सज़ा कब मिले? नाज़रीन, ये वो स्कूल है जिसमें वो नन्हा बच्चा जो है वो ज़ेर तालीम था और जो स्कूल वैन के नीचे आकर कुचल दिया गया। ये उसका फ्रंट डोर है। उस्मान ताज मेरे साथ कैमरामैन है, अगर दिखा सके तो अभी इस वक्त ये लॉक है और ये फ्रंट डोर है। नाज़रीन इकराम, फ्रंट डोर की सर्विलेंस जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि CCTV कैमराज के ज़रिए की जाती है। ताज से मैं कहूँगा कि इस दीवार के ऊपर जो नस्ब किया गया कैमरा है ये भी दिखा दे कि जिसका रुख जो है वो मेन गेट की तरफ है और यहीं से उसूलन बच्चों को निकाला जाना चाहिए और बच्चे एंटर हों। लेकिन इसी स्कूल की बगल में एक जैसे इमरजेंसी एग्ज़िट होता है, वो भी दरवाज़ा मौजूद है, वो भी गेट मौजूद है जिसके सामने जो है वो बच्चा गाड़ी के नीचे आया। उस्मान ज़रा अगर कैमरा पैन करे तो ये वो बाउंड्री है स्कूल की जो जा रही है और उसके पीछे जो ग्रे कलर का गेट है और इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए किसी तरह का कोई कैमरा मौजूद नहीं है, वरना ये सारा हादसा जो है वो कैमरे की आंख महफूज कर लेती। हमारे साथ अभी इस मौका के एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। आपने जो है वो इलाका मुकीनों की बात भी सुनी, बच्चों से मुतासरा जो ख़ानदान है उस स्कूल के बच्चों की बात भी सुनी। मेरे साथ एक आई विटनेस भी मौजूद हैं जो इस वक्त मौजूद थे वहाँ पे जब ये हादसा हुआ, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है अली रज़ा। अली भाई, आप मौके के गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जब ये सब हुआ क्या देखा आपने?
जी मैं अभी आया ही था, 2 मिनट हुए थे मुझे आए को, इधर से शोर आया एकदम से कि बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। सब लोग भागे, मैं भी भागा। जब देखा तो बच्चा गाड़ी के नीचे पड़ा था। लोगों ने गाड़ी को धक्का लगा के आगे किया जी। जब हमने नीचे देखा तो बच्चे का दिमाग जो था वो बाहर आ गया था, बच्चे की डेथ हो गई थी। उसी वक्त स्कूल वाले भी भागे, उन्होंने देखा लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इतना नहीं किया कि बच्चे को उठा के चारपाई पे डाल दें। स्कूल इंतज़ामिया जो अपनी तारीफ़ों के किलाबे मिला रही है कि हमने फौरी तौर पे ये किया, हमने बच्चे को इस तरह किया, घर वालों का ये कहना है, उन्हें दुख ही इस बात का है कि बच्चे की शायद ज़िंदगी ही इतनी थी, बच्चे को शायद दुनिया से चले जाना था। लेकिन जो शफाकियत, जो बेहिसी दिखाई गई कि घर पे कांटेक्ट नहीं किया गया, 15 पे इंतज़ामिया की तरफ से, जो कि मुबैना तौर पे उनका ये क्लेम है कि हमने किया, लेकिन वो एक आम शहरी ने 15 पे कॉल की। ये बताइएगा कि ये सब क्योंकि आपके सामने ये सारा हुआ, बच्चा आया, उसके चंद लम्हों बाद आप इधर थे, क्या आपने शफाकियत क्या देखी इंतज़ामिया की? ये देखी जी कि ये इन्होंने सिर्फ वहीं पे कपड़ा डाल दिया। बाद में मैंने इधर आधा घंटा मैं इधर खड़ा रहा हूँ कि ये क्या करते हैं। ना इन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की, स्कूल के बच्चे भी बाहर आने बंद कर दिए। दूसरी बात ये है कि बाद में मैंने ही 1122 पे पहले कॉल की, उनकी लाइन बिजी जा रही थी, तो मैंने 15 पे कॉल की, उनको बताया। बाद में हम घर चले गए, घर जाकर मैंने आपका 15 पे रब्ता हुआ? जी 15 पे रब्ता हुआ। टाइम क्या था? टाइम तकरीबन 1:25 हो चुके थे उस वक्त। 1:30 का टाइम हो चुका था, 12 बजे छुट्टी होती है, तकरीबन इस पूरे सिनेरियो को 1.5 घंटा गुजर चुका था जी। बाद में इन्होंने उनके घर वालों को भी नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि लड़का है किस गांव का। ये बताते रहे कि लड़का है ये इधर एक साथ ही गांव है बोगड़ा, वहाँ का है, लेकिन लड़का ये नहीं बताया कि वो है नया पिंड जो है वहाँ का है, 255 का है जी। अच्छा, इसमें आप समझते हैं कि अगर इंतज़ामिया बर वक्त कार्रवाई, कम अज़ कम उस ख़ानदान को इत्तला दे देती, उस बच्चे को उठाती, उस बच्चे को बाकायदा किसी चारपाई पे, स्ट्रेचर पे शिफ्ट किया जाता, तो किसी हद तक जो पब्लिक का गम गुस्सा है वो कम हो सकता था जी। अगर ये इंतज़ामिया टाइम पे एम्बुलेंस को कम से कम कॉल करती और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती तो टाइम से इनकी बचत हो सकती थी। नाज़रीन इकराम, आई विटनेस की आपने गुफ्तगू सुनी, और यहाँ पे ये बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं कोई ह्यूमन एरर, कोई इंसानी गलती इन्वॉल्व ज़रूर है, जिसके पेश नज़र ये अलमनाक हादसा पेश आया, जिसके जद में आकर एक पूरा गांव सोगवार है, एक पूरा घर मुतासर हो चुका है। और अगर उस्मान मेरे साथ ऐसे ही चलता है तो हम क्योंकि उसी जगह पे मौजूद हैं, उसी स्कूल के जो बगली जो रास्ता है, यहाँ पे इसकी कलर्ड बाउंड्री ख़त्म हो रही है। उस्मान पैन कीजिएगा ज़रा, और ये वाला वो गेट है नाज़रीन इकराम जो एमरजेंसी एग्ज़िट के लिए शायद मुबैना तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये मेरे अक़ब में वो एग्जैक्टली जगह है जहाँ पे स्कूल वैन वाला रिवर्स, ओवर स्पीड रिवर्स आ रहा था, जिसे बच्चों ने चिल्लाकर ख़बरदार करने की कोशिश भी की कि अंकल पीछे बच्चा है, लेकिन वो बच्चे को रौंद कर गाड़ी के नीचे छोड़कर गाड़ी से फरार हो गया। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन इस वक्त स्कूल प्रिंसिपल से टेलीफोन लाइन पे है, और हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो बात कर रहे हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि उनको इंटरप्ट करके उनसे कुछ सवाल कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, शोएब अल्ताफ़ बात कर रहा हूँ, एंकर पर्सन हूँ, टीम मुजरिम कौन का मुजरिम कौन प्रोग्राम है। मैम, मैं अभी हमारी टीम उस घर से आ रही है, बच्चे का 4 बजे जनाजा है, और जो उस पूरे गांव में कैफियत है वो नाकाबिले बयान है। एक नहीं, हमारी भी ऐसी है बेटे, हमारी भी ऐसी है। हमारे आपका जो बच्चा आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो सारे बच्चे प्रिंसिपल के ही होते हैं। मैडम शाम 9 बजे जाती हूँ जब तक आखिरी बच्चा नहीं जाता। मैडम, आपने जिस बच्चे का रेफरेंस दिया कि उनके ताया का बेटा 5 क्लास का एक बच्चा है, मेरी उससे बात हुई, मेरी स्कूल के दीगर बच्चों से बात हुई, गांव वालों का सबका उनका शिकवा एक ही है कि एक हादसा था, एक बच्चा था, छोटा फूल है जो खिलने से पहले मुरझा गया। अल्लाह पाक को इतनी ही ज़िंदगी उसकी मंजूर थी, वो चला गया, लेकिन बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से उनका गिला है। उनका ये कहना है कि स्कूल इंतज़ामिया ने उसी वक्त मेरे पास वीडियोस हैं जहाँ से मैं अपने ऑफिस से भागी हूँ,
ठीक है, मैं वहां पहुंची हूँ, फिर मैं वापस आई हूँ, आके मैंने ऑनर को कॉल की है, 15 पे कॉल की है। दोबारा जब बच्चे की फैमिली आई है, मैं तब भी वहीं खड़ी थी, उसकी माँ मुझे मारने लगी है, उसके दादा ने उसको रोका है। मुझे आप एक बताओ, एक जानवर अगर किसी चीज के नीचे आ जाए ना, तो तब आप पूरे डिस्कोर्ट से पूछे, 1000 बच्चा मेरी सुपरविजन में पढ़ता है, आखिरी बच्चा जाने तक बेटा मैं कभी अपने घर नहीं आई, आखिरी टीचर के जाने तक मैं कभी अपने घर नहीं आई। ये स्कूल 12 साल से मैं अकेली रन कर रही हूँ एज ए प्रिंसिपल, मैं मैनेजमेंट भी देखती हूँ। लेकिन बात यह है कि 15 पे रिकॉर्ड पे पहली जो कॉल गई है वो किसी रैंडम सिटीजन की गई है, स्कूल इंतजामिया की 15 के रिकॉर्ड पे कॉल नहीं है। मेरे नंबर से, इसी नंबर पे जिस पे आप मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे ही मैंने एक, आप देखें इतना बड़ा इंसिडेंट मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा। मैं वहां से चल के अपने ऑफिस आई हूँ, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था मैंने गिर जाना, मुझे लग रहा था कोई और इंसिडेंट ना हो जाए। बच्चे रो रहे थे, टीचर्स रो रही थी, मैंने सबको कहा कि अल्लाह से खैर की दुआ मांगो, अल्लाह कोई आगे ना कोई हो जाए। अभी बच्चे छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन तमाम बच्चे घरों को नहीं गए थे। मुझे ये था, मेरे दिमाग में गिरने लगी हूँ, तो मेरी असिस्टेंट ने मुझे पकड़ा है। हम लोग कॉन्स्टेंटली उसकी माँ को कॉल कर रहे थे, उसके फादर का नंबर हमारे पास नहीं है, उसके फादर आउट ऑफ कंट्री है। हम 5 बजे तक उन लोगों के साथ, पुलिस वहाँ उसी हमारे स्कूल के वॉशरूम्स में वहाँ हमारे साथ रही है। 5 बजे मैं वहाँ से आई हूँ, हमारे स्कूल के ऑनर वहाँ बैठे थे, हम लोगों ने किसी को नहीं आंका। हमारे पास जहाँ तक हमारे कैमरास लगे हो, स्कूल कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि वहाँ कैमरेज नहीं है। नाजरीन, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन खालिद हयात कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है नन्हे इब्राहिम की नागहानी मौत की, और फिर उस मौत के बाद जो ज़िम्मेदारान थे और जो वहाँ पे क्राइम सीन पे जो इमीडिएट लोग थे उनके गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की पूछते हैं, क्योंकि खालिद साहब का ताल्लुक़ उस एसोसिएशन से है जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स को देखती है। इनकी गुफ्तगू होती रहती है। खालिद भाई से पूछते हैं कि अगर पर वक्त जो है इस पे रिस्पांस पॉजिटिव दिया जाता तो क्या हालात को कंट्रोल किया जा सकता था। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद भाई बताइएगा कि डचकोट में एक अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है, एक प्रेप क्लास का बच्चा एक गाड़ी तले आकर कुचल दिया जाता है और वो ड्राइवर जो है वो मौका से फ़रार हो जाता है। अब यहाँ पे फ़र्स्ट रिस्पोंडेंट जो है वो इंतज़ामिया को होना चाहिए था, जो बदकिस्मती से मुबैना तौर पर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आम शहरी ने फ़ोन किया, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1 बजे के बाद फ़ोन किया गया, 12:05 पे छुट्टी होती है। इतना टाइम, ये गफलत, और फिर पेरेंट्स का ये गिला है कि हमें 1:38 पे जो है वो इत्तला मिलती है, जुमे का दिन था, 12 बजे छुट्टी होती है। इस सब गफलत में क्या आप कहते हैं कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाता हादसे के फ़ौरन बाद तो क्या हालात मुख्तलिफ हो सकते थे? जी शुएब भी, सबसे पहले तो मैं इस अफसोसनाक वाक़ा पर उनके जो वालिदैन हैं नन्हे मासूम बच्चे के इब्राहीम के, उनसे ताज़ियत का इज़हार करता हूँ अपनी जानिब से भी और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से भी। अल्लाह ताला उसके वालिदैन को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बड़ा सानिया है और ये सवालिया निशान भी है जैसा कि आप फरमा रहे हैं। चूँकि मैंने आज राब्ता मैनेजमेंट से करने की कोशिश की लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो सका। डिटेल का मेरे पास अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकूं कि उन्होंने वहाँ पे इस वाक़या के बाद कैसा रिस्पांस दिया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ड्राइवर के मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि इस ड्राइवर ने वहाँ पे कुछ लोगों से, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई चंद स्कूल्स के मालकान के साथ, कि ड्राइवर की जो रिप्यूट है वो ठीक नहीं है। बहसीत एक प्राइवेट स्कूल ओनर या इंतज़ामिया, अगर आप पिक एंड ड्रॉप की सहूलत पेरेंट्स को देते हैं तो उसका कोई ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए ड्राइवर्स का, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का मामला है, बच्चों का मामला है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यकीनन शुएब भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और इससे एक अलमनाक हादसे के बाद मैं आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से जितने हमारे तलीमी इदारे उनके सरबराहान को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जो बच्चे हमारे पास हमारे तलीमी इदारों में पढ़ने के लिए आते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और वो तलीमी इदारे जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को और दूर दराज से उनके बच्चे आते हैं,
تو چاہیے یہ کہ جو ڈرائیور ہم ہائر کرتے ہیں یا جس کو ہم کانٹریکٹ دیتے ہیں، پہلے اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اور اس کا جو سابقہ ایکسپیرینس، اس کا جو ریکارڈ ہے وہ لیا جائے، اور یہ تھانے سے، پولیس اسٹیشن سے اس کا ریکارڈ چیک کروایا جائے کہ آیا یہ بندہ کریمنل تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کو اس طرح کا کوئی جو ہے کانٹریکٹ دیا جائے، یا گاڑی کا ڈرائیور اگر ہم نے ہائر کرنا تو ایسے بندے کو رکھا جائے جس کا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ درست ہو. تو آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ نجی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے. باقی ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ اس پہ انکوائری کرے گا. جو بھی ذمہ دار ہوگا ظاہر ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن مین ایک مجرم کے طور پہ جس کی مجرمانہ غفلت ہے ڈرائیور کی، نہ صرف اس سے حادثہ ہوا اور اس کی غفلت کی وجہ سے ہوا، جیسا کہ میرے علم میں ایک اور بھی کافی سارے دوستوں نے جب میرے رابطے ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی ڈرائیونگ بڑی غلط ڈرائیونگ تھی، اور بچے اس وقت چلا رہے تھے کہ انکل پیچھے بچہ ہے، وہ ننھا معصوم بچہ ابراہیم غالباً وہ پینسل اٹھا رہا تھا اس وقت. تو پھر اس کے بعد اگر حادثہ ہوا تھا تو اس کو فوری طور پہ ریسکیو کرنا چاہیے تھا، 15 کو کال کرتا، پولیس ڈپارٹمنٹ کو کال کرتا، اور اگر وہ بچہ زخمی تھا تو اس کو ہاسپٹل تک پہنچاتا اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ. خالد بھائی، اگر ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو بھی گئی ہے تو پھر بھی اسے کم از کم، کیونکہ ان کا گھر والوں کا، گاؤں والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بے حرمتی ہے، ایک ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی ہے کہ آپ 1-1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ اس کو کوئی اٹھائے نہ. اگر ڈیڈ ڈکلیئر ہو بھی گیا تھا تو بھی اٹھاتے، ریسکیو کو کال کرتے، اس کو ایٹ لیسٹ ہاسپٹل شفٹ کرتے جہاں پہ اس کی باقی کارروائی کی جا سکتی تھی. بالکل یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ تو بے حسی کی انتہا ہے شعیب بھائی. ایک تو حادثہ ہوا ہے اور معصوم بچہ جو ہے اس کی جان چلے گی، اور پھر اس پہ یہ اور ظلم ہے، اس کو ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر یہ اور ایک مجرمانہ غفلت ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور جو بھی متعلقہ ادارے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. خالد بھائی، آپ کو بہت شکریہ. ناظرین کرام، ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے چیئرمین خالد حیات کموکا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے ہم ایسے حادثات سے اوائڈ کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا احساس کیا جاتا تو شاید حالات اس نہج تک نہ پہنچ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ننھے ابراہیم کے خاندان، آئی وٹنسز اور دیگر لوگوں کی گفتگو سنائی، اور آپ کو بتایا کہ کیسے ایک ننھا پھول کھلنے سے پہلے مسل دیا گیا، کیسے ایک خواب پورا ہونے سے پہلے ٹوٹ گیا. ناظرین کرام، ابراہیم اس دنیا سے چلا گیا مگر اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا کہ ہم معاشرتی طور پہ کہاں کھڑے ہیں. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.